Namaste friends and our industry colleagues. It's my pleasure that today I am with Mr. Harpal Wala, MD, CEO of the renowned pharmaceutical company Kepler Healthcare Private Limited. Namaste Harpal sir. Congratulations to you on the success of Kepler Healthcare. Thank you very much for your compliment. In last 5 years, Kepler has registered highest CAGR among the top 100 pharma companies of India. So this is a pride moment for all of us. And that has been possible because of the trust and confidence of 3 lakhs doctors of the India. And in addition to that, it is also a hard work of 2000 Keplerians. Sir, today I am here with you to discuss on the topic of the drama Ankahi. Since the theme was conceptualized by you, I request you to say something about this. Yeah, I believe that frontline manager who are looking after the medical representative, that there is a team of 5 medical reps, and they should have an emotional connect with them in order to make a great team. I also believe that in order to become a great leader, you should be a great human being also. And I thought that drama is the great medium through which we can give the right message and it can touch the heart of the manager and they can get the true substance of the leadership. This is a reason we have planned the drama Ankahi, and that drama was performed during the game changer meeting of the Kepler Healthcare. That meeting is organized specially for the frontline manager, a second line manager and senior manager of the entire company, means entire team was there. And when the drama was performed, there were tears in the eyes of all the managers. And that shows that they were able to touch the heart of them. So now, since they have a better empathetic understanding about their people, I'm sure it will help them to become a great leader and they will be able to contribute better, not only in the organization, but in the society also. Looking to this, we thought over that since it is a great drama, it should not be limited only for the Kepler Healthcare. So we are now making it available to entire pharmaceutical industries. Wow, it's really a fantastic initiative taken by you, sir. And I believe this is the first time any organization has thought of this meaningful message. And I'm sure this drama will help the entire pharmaceutical industry to build a positive environment for the sales team to work their best and giving their best. My sincere compliments to you, sir. And now I understand 5 people are keen to join Kepler Healthcare. Your leadership and noble thoughts are inspiration to the entire pharmaceutical industry. Now let's watch the play, Ankahi. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पद्मेश पंडित। नाम पर मत जाइएगा क्योंकि डॉक्टरी में बहुत पीछे छोड़ चुका हूं। वैसे मेरी बीवी का नाम भी डॉक्टर पूर्वी पंडित है, उसे नहीं छोड़ सकता ना। खैर, आज हम नाटक जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उससे पहले आप छोटी सी कहानी सुनिएगा। मैं जब छोटा था तो काफी बीमार रहता था। मेरी माँ अक्सर मुझे एक डॉक्टर के पास लेके जाती थी। मुझे आज भी नाम याद है उनका, डॉक्टर नाणावटी। वो मुझे एग्जामिन करते, मेरी ट्रीटमेंट करते। उस दौरान मैं हमेशा देखता रहता था कि एक जवान लड़का टाई पहन के डॉक्टर को कुछ सिखा रहा था, शायद समझा रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था। मुझे हमेशा लगता था कि इतने बड़े, इतने ज्ञानी डॉक्टर को क्या समझाता होगा। बड़ा हुआ तो पता चला कि इसे एमआर कहता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों, आज हमारा ये नाटक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिंदगी पे आधारित है। आइए देखिए अनकही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हाँ दर्पण। अरे पक्का पक्का, अरे पार्टी पक्की। अरे पर दोस्त नौकरी तो मिलने दे। हाँ अरे पक्का पक्का। अरे हाँ लेट्स सी, अभी मैंने अप्लाई तो किया है। आराम से आराम से आराम से।
हाँ हाँ अरे एक मिनट दर्पण एक मिनट, ये रानी परेशान कर रही है, एक मिनट, आई कॉल यू। क्या है? हाँ ला मस्त है। पापा हाँ देव देव, वो तो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया ये लड़का। ये लड़का कभी टाइम पे नहीं आता। हाँ, अच्छा लग रहा हूँ पापा। अरे selfie। वाह, अरे वाह, बहुत पर मैं बढ़िया। जाऊंगा कैसे अब? भैया आप रिक्शा से चले जाना। हाँ ऑटो से चले जा। ठीक है। हेलो, रिक्शा से क्यों? लो। मैं गाड़ी लेकर आई हूँ ना, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। अब बाय द वे सॉरी आई एम लेट, ये तेरा परफ्यूम लेने के चक्कर में लेट हो गई। अरे ये ले परफ्यूम, अच्छे से लगा कर जाना, फिर तो नौकरी पक्की। ओ दिव्या, नौकरी परफ्यूम से नहीं टैलेंट से मिलती है, और मेरे भैया में तो बहुत टैलेंट है। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। हाँ? हर बार बीच में बोल रही है। भैया दिव्या तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ ये लो। हाँ अच्छे से इंटरव्यू देना हाँ बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। जाओ चलिए आराम मैं से। जाता हूँ। भैया हाँ। मेरे पैर कौन छुएगा? रानी क्यों परेशान कर रही है उसे? जाने देना बेटा, देर हो रही है। प्रे करना कि नौकरी मिल जाए। हाँ भैया। हाँ? ठहर 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 ठहर। अरे हाँ ये परफ्यूम लगा के जाना भाई। ये दिव्या भी ना। ऑल द बेस्ट चलिए बेटा। मैं जाता हूँ। बाय संभाल के, बाय 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 बाय। संभाल के जाना। हाँ पापा क्या सोच रहे हो? पापा हाँ हाँ। क्या सोच रहे हो? अरे बेटा तुझे पता है रानी, हाँ? अपना राहुल जब छोटा था ना, तब तेरी माँ और मैं उसे एक महाराज जी के पास लेकर गए थे। महाराज जी ने उसकी कुंडली देखकर कहा कि ये लड़का बहुत ही भाग्यशाली है, आगे जाके ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, नाम रोशन करेगा खानदान का। और देख, देखते ही देखते तेरा भाई बड़ा हो गया और आज इंटरव्यू के लिए जा रहा है। हाँ? बहुत ही होनहार है मेरा बेटा। वो तो है। तुझे पता है ना, तेरा बड़ा भाई रितेश और तेरी भाभी सरिता दोनों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद उनके बेटे शिवा की जिम्मेदारी सारी हम पर आ गई। और ये तो मेरा बेटा राहुल है जिसने शिवा की सारी जिम्मेदारी ले ली और उसे अच्छे से हॉस्टल में दाखिला करवा दिया। बहुत ही होनहार है मेरा बेटा। बस एक बार उसकी नौकरी फिक्स हो जाए ना तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि तू तो जानती है ना, कुछ ही दिन में मैं रिटायर हो जाऊंगा और मेरी कैंसर की बीमारी, उसके इलाज का खर्च, शिवा की पढ़ाई का खर्च, ये खर्च बहुत तकलीफ देते हैं बेटा। पापा शिवा की हॉस्टल्स की फी भैया भर ही रहे ना, और वैसे भी शिवा देखते ही देखते कैसे बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, मेरे भैया 100% ट्रस्टवर्दी हैं। हाँ वो बात तो है। और पापा एक एमआर को नौकरी के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल और गुड पर्सनालिटी। हाँ। और ये सब तो मेरे भैया में है ही। हाँ ये बात तो है तेरी सही। पापा हाँ। ये भैया को एमआर क्यों बनना था? MR क्यों? वो तो फिल्म स्टार भी बन सकते थे ना। अगर मेरे भैया फिल्म स्टार बनते तो पहले फिल्म में सुपरस्टार बन जाते। एकदम सही बात है तेरी बेटा। पापा भैया इंटरव्यू में पास हो जाएंगे और उनको नौकरी भी मिल जाएगी, है ना? अरे फोन हाँ। कौन है? शंपू का फोन। अरे शिवा। शंपू भैया तो कब के गए, तू लेट हो गया। हाँ अरे अरे बोलने तो, अरे तू ही सब बोलेगा क्या? हाँ हाँ ए पंचायती भैया आएगा तो फोन करना। हाँ ठीक है, बहुत काम है मुझे, बाय बाय। ये भी ना क्या कह रहे? लो भाई ये आ अभी गए आ रहा है। जनाब। राहुल, राहुल, रानी क्यों परेशान राहुल। कर रही है उसे? राहुल चलना भाई। अरे आज भी भाई लेट करेगा देव क्या? अरे वाह अंकल, नई गाड़ी ली। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या चलना भाई राहुल, कितना टाइम? ए तू लेट हो गया, भैया तो कब के गए। गए? मैं लेट हो गया आज भी। हाँ निकल गया राहुल। निकल गया। अरे अंकल गाड़ी लेकर आया था मैं, जल्दी पहुंच जाते। लेकिन भैया तो गए बड़ी गाड़ी में। हाँ बड़ी गाड़ी में गया। बड़ी गाड़ी में? व्हाट डू यू मीन बड़ी गाड़ी में? ए दिव्या के साथ गए भैया। अंकल आज भी दिव्या के साथ चला गया, वो देखा?
चलो अंकल मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा। राहुल का इंटरव्यू स्टार्ट हो उससे पहले ही मुझे वहां पहुंच हाँ, जाना जल्दी, है जल्दी, ना? जल्दी, हाँ। चलो। और हाँ अंकल, राहुल का इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं खुद ही उसे लेकर आऊंगा। और प्रवीण अंकल, मैं सिर्फ राहुल को ही नहीं उसकी जॉब भी लेकर आऊंगा। चलो अंकल, नाउ आई एम गेटिंग लेट। बाय 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 बाय। कमाल का पापा लड़का। मुझे किचन में बहुत सारा काम रानी है। बेटा, हाँ पापा। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो घर में कंसार बनाती। पापा कंसार, हाँ? वो तो माँ ने मुझे भी सिखाया है। अच्छा? और मैंने बनाया भी है। ओह। और मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। मेरी बेटी कंसार भी बनाने लगी। हाँ पापा। गुड मॉर्निंग सर। अविनाश, हाँ, यस यस। सर ये मेरा दोस्त है राहुल मजमूदार। हेलो। हेलो सर। He has just completed his MSc भाई। और वो हमेशा से चाहता था कि वो एक MR बने ओह, वेरी गुड, वेरी and गुड। he has all the skills for it. Sir, I think he will be an asset to our company. मैं चाहता हूँ आप इससे बात करिए। Sure, Please. sure. Handsome, have a seat. थैंक यू सर। But the job you have chosen is very difficult. डोंट वरी सर, आप लोग हैं ना मुझे सिखाने के लिए। हाँ। आप लोग मुझे सिखाना, मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। Confident, confident. A document, please. हाँ सर। 1 मिनट सर। Yeah. Nice. Very nice. Good, 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 good. Very good. राहुल, ये बीएससी और एमएससी के बीच में 1 साल का गैप है। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने तो देखा ही नहीं। अविनाश, वी कांट ओवरलुक ऑल दिस। हम अच्छी तरीके से अगर इंटरव्यू नहीं लेंगे तो कंपनी के लिए अच्छे कैंडिडेट कैसे ढूंढ पाएंगे? वी हैव टू चेक। हाँ सर। राहुल, प्लीज एक्सप्लेन। यस सर। सर एक्चुअली द थिंग वाज कि जब मैं बीएससी कर रहा था ना, तब मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो घर में पैसों की थोड़ी तकलीफ थी, तो मैंने सोचा कि 1 साल का ड्रॉप ले लेता हूँ, छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा तो घर में पैसों की भी मदद हो जाएगी। तो सर इसीलिए मैंने 1 साल के बाद एमएससी किया। इट्स ओके, इट्स ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबके साथ ऐसा होता है। इट्स फाइन, बट थिंग इज गुड, you completed your MSc. Yes. Yes, nice, nice. All documents are okay, but I have to check how smart and spontaneous you are. ओके सर। You have to pass my exam. यस सर, आई एम रेडी। This is a pen. You have to sell this pen in 1,000 rupees within a 10 second, and your time start now. सर 1 मिनट पकड़िए। सर डन। What? 8 सेकेंड्स। ये पेन मैंने 8 सेकंड में आपको बेच दी और आपने खरीद ली। Very nice, very nice. Intelligent, intelligent. Huh? I have gone through your papers and achievement. It's excellent. Congratulations. The job is yours. Welcome to our company. थैंक यू सर। थैंक यू सर। अविनाश जी सर। राहुल को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बता देना। जी सर। अपनी कंपनी की प्रोफाइल और अपनी इस लाइन में क्या नहीं करना है वो पहले बताना। और अभी अभी जो हमारी नई एंटीबायोटिक आई है ना, जी। उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। जी सर। अपने एरिया के सारे डॉक्टरों के पास तुम खुद लेके जाना। जी सर। हाँ? उसको इंट्रोडक्शन करा देना। आई थिंक हफ्ते बाद अविनाश, राहुल को तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, इज माय मेंटर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Sir, my name is Rahul Majmudar. I am from Kepler Healthcare Limited. I am here to talk about our syrup, Bifolate. Sir, if you give me permission, I would love to elaborate about the same. Young man, बहुत जल्दी है तुम्हें। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। इतनी भी क्या जल्दी है? बैठो बैठो। Sure, sir. ये क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग है। Yeah. ये ओवर खत्म हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। Well, there we go. Magnificent victory by the team.
सर सर राकेश सर, ऐसा हो तो मैं कल भी वापस आ सकता हूँ. यू एंजॉय योर मैच. सॉरी सर. एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोला है, जाने के लिए नहीं. MR कैन नेवर बी रूड. कॉल योर सीनियर. अविनाश, जी सर. ये क्या है? क्या हो सर? ये तुम्हारे नए लड़के को तमीज नहीं है क्या? मैंने उसे बैठने के लिए बोला तो बोलता है कि कल बात करते हैं, और ये सब सामान पैक कर रहा है अपना. सॉरी सर, ये क्या कर रहे हैं? सॉरी बोल सर, पर वो मैच इज वेरी सीनियर, यू हैव टू से सॉरी. राकेश सर, आई एम रियली सॉरी. मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था. बट द थिंग इज, मेरी माँ कहा करती है, जिसको दूसरे के समय की कीमत नहीं हो, उसका समय लेकर हमें अपना समय भी कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए. सॉरी सर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. आई वॉज जस्ट टेस्टिंग योर पेशेंस. तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत सही बात सिखाई है. डोंट वरी. एनीवेज, बताओ अपनी कंपनी, अपनी सिरप के बारे में, और एकदम डिटेल में बताना. एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर मुझे सब कुछ सही लगा तो अगले 6 महीने तक मैं तुम्हारी सिरप लिखूंगा. सर, सर, hear me out. Go on. As we know that India में 67% of the children have vitamin B12 deficiency, and this not only affects their mental health but also their physical health. But our company, Kepler Healthcare, as a leader in this industry, are coming up with bifolate syrup. Yes, sir. It will help the children in getting more knowledge, physically, mentally, and they'll be better. And sir, the thing is, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई भी एज ग्रुप. And sir, our company's vision is a better future for children and youth as well. Very nice, very nice. I must say I am really impressed by your presentation. Thank you, sir. Good work. I'll be in touch. Thank you, sir. Sir, if you need anything, do give me a call. Sure, Keep the samples. sure, sure. Thank you, sir. Thank you. सर एक बात बताऊं, Yes? he has just joined our company and today was his first call to you. Oh, really? Yes sir. You were really very good on your first call. Thank you, sir. Congratulations. Thank you, sir. 1 minute. This is a token of appreciation from my side. ये तुम्हारा पहला कॉल था और तुमने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दिया. Keep it up. I wish you the best for the future. Sir, this is really motivating. Thank you so much, sir. My pleasure. This means the world to me. Thank you. Thank you sir. हर्ष, अविनाश सर, सच कहूँ मुझे तो लगा मैंने पहले ही कॉल में गड़बड़ कर दी. अरे नहीं कोई गड़बड़ नहीं की, तूने बहुत अच्छा किया. वैसे भी डॉक्टर थोड़ा टेढ़ा है. Oh, सर क्या बोल रहे हो? सर 1 मिनट, दीदी का फोन है. अच्छा. हाँ रानी. हाँ, अरे बहुत अच्छा गया कॉल. हाँ हाँ बोल ना. क्या? अरे नहीं मेरी वेट मत कर, पापा को हॉस्पिटल में लेकर जा. रानी मैं बोल रहा हूँ वैसा कर प्लीज. क्या हुआ? सर सर इमरजेंसी, मेरे डैड को ना कैंसर है, तो पता नहीं मुंह से खून निकल रहा है, तो इफ यू अलाउ मी आई हैव टू गो देयर. अरे क्या अलाउ, यू शुड गो देयर. और ये कॉल वॉल की चिंता तू मत कर, मैं बाकी के कॉल कंप्लीट कर लूंगा. सर बट कुछ बट नहीं, गो एंड अटेंड योर डैड फर्स्ट. गो. ओके गो. थैंक यू सर. अरे थैंक यू कुछ नहीं, जा बेटा. सर ऐसा हो तो आई विल जॉइन यू इन द सेकंड कॉल. ओके. थैंक यू सर. अरे वाह.
कैसा लग रहा हूँ? एकदम बढ़िया। है ना? पापा भैया बड़े हो गए हैं ना? अरे हाँ तो इससे और कितना बड़ा करना है तुझे इससे? बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा आज। थैंक यू। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच पापा। जीते रहो बेटा, बस ऐसे ही तरक्की करते रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह। हाँ, तेरी तरक्की से मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अरे 1 साल में तूने 2-2 बार इंसेंटिव लिया है और इस बात से तेरी ऑफिस वाले भी बहुत खुश है ना। बस आज अगर मुझे मौत भी आ जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है रानी और शिवा का तू पूरा ख्याल रखेगा। कहाँ जाना है प्रवीण भाई? अरे इतना जल्दी? हाँ? अरे बेटा, अरे पापा आपको कहीं नहीं जाना है, मेरी शादी बाकी है। हाँ। मेरे बच्चे होंगे तो उनकी नैपिया कौन बदलेगा? आप ही तो बदलोगे। वो बात सही है बेटा, बस मैं भी यही चाहता हूँ अब कि तेरे बच्चों को खिला कर ही जाऊं। पापा भैया आप लोग बात ही करते रहोगे या फिर मेरी मदद भी करोगे? मेहमान आते ही होंगे भाई। मेहमान आ चुके हैं भाई। अरे आ गया भाई। मेहमान वाह। ये मेहमान है। हैप्पी बर्थडे राहुल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच भाई। मेहमान हो ना, प्लीज प्लीज बैठो बैठो, प्लीज प्लीज बैठो 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 बैठिए। सर क्या लाए हैं आपके लिए? कुछ नहीं। आप क्या लाए हैं इनके लिए? मैं खुद आया हूँ। केक? केक बस आ गया। और बड़ी तरह। लेकर आई हूँ। अरे थैंक गॉड। देव्या देव्या इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देव सीख। थैंक यू। तेरा फेवरेट है। पर तू गिफ्ट लाया या ऐसे ही आ गया? अरे भाई पार्टी में मैं खुद आया हूँ, ये क्या गिफ्ट से कम है? भैया गिफ्ट से याद आया, शिवा ने आपके लिए कार्ड भेजा है और हाँ वो उसने खुद बनाया है। अरे बात दिखा। मुझे देखने दे। अरे वाह इसमें तो कुछ लिखा भी है। हाँ पढ़ो। मेरे प्रिय चाचू, आप बहुत ही अच्छे हो और आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। और हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर आपसे भी बड़ा आदमी बनूंगा। बनेगा बनेगा। पर हाँ चाचू आपसे एक बात करनी थी। ये दिव्या चाची दिव्या चाची से आप दूर रहना, आपको वो बहुत परेशान करती होगी ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए दिव्या चाची से भी ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात आप दिव्या चाची को मत बताना। हैप्पी बर्थडे चाचू। ये क्या है? ये वो छोटा है। ऊपर से मुझे चाची चाची भी बोल रहा है। हाँ दिव्या वैसे तू जब साड़ी पहनती है तब चाची लगती है। क्या मैं चाची लगती हूँ? तू भी? नहीं मैं नहीं, ये देव ऐसा कोई बोलता है क्या? हाँ ऐसे बोलते हैं क्या दिव्या को? तू भी? पापा ये लोग। अरे जाने दो भाई। हाँ? अरे सर प्लीज बिहेव। थैंक यू सो मच अविनाश सर। हैप्पी बर्थडे राहुल। अरे मुरली सर थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। इट मींस अ लॉट। सर पापा ये है मुरली सर एरिया मैनेजर और ये है मेरे फ्रेंड जैसे अविनाश सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सर वेट अ मिनट, ये रानी बिटिया है राइट? इसका होने वाला हस्बैंड कार्तिक बड़ौदा में बैंकर है राइट और अगले महीने इन दोनों की शादी है। राइट। सर हाउ डू यू नो? आई नो एवरीथिंग। एंड सर वेट अ मिनट एंड शी इज शिवा की होने वाली चाची। अरे नहीं मतलब मेरे भैया की होने वाली फियांसे। Congratulations. सर शी इज दिव्या शी इज माय फियांसे। हेलो। एंड सर अरे सर मैं राहुल का होने वाला दोस्त। अरे होने वाला दोस्त मतलब सर पुराना दोस्त देव। सर नाम तो सुना होगा ना आपने? हाउ? ए नहीं सुना है, चुप रह। हाँ सर प्लीज केक काटते हैं। हाँ सर केक काटते हैं। प्लीज 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 प्लीज। चलो चलो चलो। टेन। अरे वाह वाह दिव्या माय फेवरेट। लो बेटा इसे यहाँ रख दो। अरे कोई सॉन्ग भी तो गाएगा कि नहीं गाएगा?
खुद खा लिया उसने। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू। राहुल, आज बर्थडे तुम्हारा, मगर गिफ्ट मैं रानी बिटिया के लिए लाया हूँ। रानी बिटिया, एक मिनट। ये 5 नाइट 4 डेज हॉलीडे एट शिमला इन 5 स्टार होटल। थैंक यू सर। देखो, थैंक यू मुझे नहीं, तुम्हारे भैया को बोलो। ये गिफ्ट हमारी कंपनी ने नहीं, मगर राहुल ने अपने इंसेंटिव में से रिडीम करा के दिया है। बोले अपनी बहन को मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू भैया। और ये कपल में है, तुम्हारे हस्बैंड के साथ जाना, मगर आफ्टर मैरिज। वेरी साई, वेरी साई। मुरली सर, सर आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल अरे दी। सर, आपकी जिंदगी हमने नहीं, आपके बेटे ने बदली है। राहुल बहुत ही होनहार है, उसने सिर्फ आपकी नहीं, हमारी कंपनी की लाइफ भी बढ़ा दी है। राहुल, सॉरी, आई हैव टू लीव। कंपनी में बहुत सारी मीटिंग है, यू नो ना। सर आप आए वही बड़ी बात है। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। और कल ऑफिस में मिलते हैं। शार्प 9 AM। यस, नई प्रोडक्ट भी तो लॉन्च हो रही है ना। बाय बाय अविनाश, बाय बाय बाय। बाय। भैया हाँ मुरली सर गए? अभी गए। हाँ तो क्यों? कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी खेलूंगा। हाँ तो हम लोग डम शराज खेलेंगे। भैया आप मुझे एक मूवी का नाम बताएं और उससे मैं एक्ट करके दिखाऊंगी, है ना? ओके, आई हैव अ मूवी। ओके। ओके, डिफिकल्ट है, आई नो। सर आप भी खेलिएगा। अविनाश सर, हाँ एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से आपके साथ थोड़ी बात करनी थी। हाँ बोल। सर एक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने का दिल कर रहा है। अब नहीं सर, वेट अ मिनट, मुरली सर ने मुझे ऐसा कहा है कि इफ़ आई अचीव माई टारगेट्स मुझे सिंगापुर की ट्रिप मिल सकती है। तो सर आई वांट टू आस्क फॉर परमिशन, क्या ये एक्सपोर्ट में कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। दिस इज इलीगल। अगर पता चला तो तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। अब सर ये तो मैंने सिर्फ पूछा, मेरे दिमाग में थॉट आया तो आई थॉट कि मैं आपको पूछ सकता हूँ, सिंपल। अच्छा किया तूने मुझे पूछा, लेकिन ऐसा करने का कभी सोचना भी नहीं। पक्का सर। ऐसा राहुल, एक बात मैं भी बताना चाहता था। नेक्स्ट वीक मेरी ट्रांसफ़र हो रही है। आई एम गोइंग टू दिल्ली। यस सर, आई मिस यू। Rahul, Mr. Desai will come to join you. I think you will love working with him too. I hope so. सर, हाँ, अविनाश सर मत जाओ ना। अरे, it's a protocol, you know that. I miss you, but I miss you too. thank you for being like a father. God bless you. Hey, let's enjoy. भैया ये मूवी तो बहुत हार्ड है। आप नहीं, मेरे नहीं साथ बोला। डांस करिए। Rahul Majmudar. Very good name. Thank you, sir. मेरा नाम है नीरज देसाई and I am from Baroda. Sir, I know. लास्ट टाइम तूने सिरप बेच दी कंपनी की, बहुत अच्छा किया है। गुड रिपोर्ट्स। दिस टाइम वी आर कमिंग विथ एन एंटीबायोटिक। आई होप यू विल डू द सेम। I'll try my level best, sir. मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। 2 incentives in an year. वेरी गुड। लेकिन शायद तूने मेरे बारे में बहुत सुना नहीं होगा। भाई मैं क्या है, नॉर्मल आदमी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है। और आई बिलीव इन एक्शन, ओनली एक्शन, नो टॉकिंग, ओनली एक्शन।
हर एक बात बतानी थी. आई एम अ फैमिली मैन एंड माई फैमिली स्टेज एट बड़ौदा. तो जब मैं यहाँ 9 कॉल करने के लिए आता हूँ तेरे पास, तो 6 बजे तक सारे कॉल हो जाने चाहिए. वो क्या है कि 6 बजे मेरा बड़ौदा वापस जाने के लिए ट्रेन होता है. ओके सर. तो ये तुझे संभालना पड़ेगा भाई. डन सर. तो चलो कॉल पे. अरे भाई कॉफी पीने 120 रुपया की है, कंपनी के पैसे की भाई, पीना. सर आई मस्ट से यू आर अ वेरी फनी मैन. वो तो देखते हैं. द कॉफी इज गुड. Good morning, sir. Sir, my name is Rahul Majmudar. I am from Kepler Healthcare. And sir, he is my new area manager, Mr. Neeraj Desai. He is from Baroda. जय श्री कृष्ण साहब. Sir, we are here to talk about some great antibiotics which our company has to offer. What? Yes, sir. एंटीबायोटिक्स? अरे फिलहाल मैं जो एंटीबायोटिक्स लिख रहा हूँ वो मेरे साले की कंपनी से आता है, और वो छोड़ के मैं तुम्हारी एंटीबायोटिक्स लिखूं? आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू. यू मे गो. Sir, but at least have a look, please. लाइक आई सेड, यू कैन गो. Sorry, sir, to disturb you and to take your time, but next time I'll come with full preparations. Have a nice day, sir. प्लीज लीव. सर, ये क्या किया आपने? You could have easily helped me. क्या हेल्प है? तेरे में अक्कल वक्कल है कि नहीं? क्या किया तूने अंदर? अबे उसके साले की कंपनी है, वो भी एंटीबायोटिक बनाती है, तो उसको साले को पकड़ेगा कि तेरे को? है? अबे ट्रेनिंग में कुछ सीखा है कि नहीं? ऐसा हो तो जा वापस वो तेरा ट्रेनिंग मैनेजर के पास में बात. इतनी सारी प्रोडक्ट है हमारी कंपनी की, 2-4 प्रोडक्ट और चिपका देता. एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक करके चिपका रहता था. सॉरी सर, आपने ये जो बोला एक्सपीरियंस वाली बात, मैं मानता हूँ कि मैं आप जितना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन आप तो बोल सकते थे ना ये सारी बात. यू हैव मोर नॉलेज अबाउट आवर कंपनी. तो सारा नॉलेज में तेरे पीछे खरच डालू ऐसा? अबे तेरे में अक्कल नहीं, मेरे पे क्या ढोल रहा है? बात करता है यू शुड हैव डन दैट, यू शुड हैव डन दिस. बात कर रहा है, बोले उचक. सॉरी सर. हेलो हेलो. हाँ पापा, अरे जल्दी बोलिए, मैं कॉल पे हूँ. क्या? अरे ये लड़की को कितनी बार बोला है कि एक्टिवा स्लो चलाया कर. हेलो. हाँ पापा, मैं ट्राई करता हूँ, आने की ट्राई करता हूँ. हाँ अब हाँ ठीक. क्या है सर? इट्स एन इमरजेंसी. मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है. आई हैव टू गो. सर ओ प्लीज. भाई, क्या गो? तो ये सब कॉल अटेंड कौन करेगा? पहले ही बोला था, आई एम अ मैन ऑफ एक्शन, ओनली एक्शन, नो टॉकिंग. 9 कॉल करने, 6 बजे का ट्रेन, बड़ौदा. भूल गया क्या साहब? सर बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स एन इमरजेंसी. मेरे पापा वहाँ पे अकेले हैं. अरे इधर मैं भी अकेला हूँ, क्या करूँ भाई? काम तो करना पड़ेगा ना. एक काम कर सकता है तू, है ना, एक एप्लीकेशन डाल दे, आधा दिन का छुट्टी ले ले. तो क्या है, प्रोटोकॉल के मुताबिक आई कैन से कि भाई एमआर नहीं था तो मैं 9 कॉल अटेंड कैसे करता विदाउट एमआर. तू भी छुट्टा और मैं भी छुट्टा भाई. नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकते. मेरी जॉब पे जाना है, कॉल पे चलते हैं. चलो सर. पक्का ना? पक्का. ये तेरी इमरजेंसी का वापस मेरे पे मत ढोलना, कोई हो जाए तो. ठीक है, चलिए सर. चल पक्का ने भाई, ऐसा मुंह लटका के नहीं है डॉक्टर के सामने. हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ऐसे करते. चल. हाँ, ये लड़की भी ना आज पता है क्यों लेट आई है. पहचान कौन? दीपिका. दिव्या. अरे आई नो दिव्या. अरे
इतना लेट क्यों आई? हाँ, आई वॉज मिसिंग यू सो मच। तू हर बार लेट करता है ना, तो आज मैंने लेट कर दिया तो क्या हो गया? बदला। हाँ चलिए, अलाउड है। बाय द वे राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज कितने दिनों के बाद हमें साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिला है। यस दिव्या, दिव्या आई एम सॉरी। हाँ, मैं मेरे ऑफिस के चक्कर में आई एम नॉट एबल टू गिव यू टाइम प्रॉपर्ली। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके बाबा, लेकिन प्लीज आज बिजनेस रिलेटेड कोई बात मत करना, ठीक है? ओके मैडम। बैठो। राहुल, बारिश। हाँ, ये दिव्या, ये तेरा फेवरेट सीजन है ना? हाँ, हम साथ में और बारिश, सो रोमांटिक। इट इज। लेट्स डांस। नहीं नहीं, मुझे डांस वांस नहीं आता। क्या नहीं आता? लेट्स गो। अरे 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 दिव्या, अरे दिव्या, अच्छा बेटा, माय टर्न। लेट्स डांस। अरे नहीं, क्या लेट्स डांस? पुलिस देखेगी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। नहीं बाबा। जब मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तो पुलिस कैसे पकड़ के ले जाएगी? हाँ? हाँ बेटा। लेट्स डांस। Right. Okay, my turn, my turn. Left and right. Circle. Circle. Okay. Reverse, reverse. ऐसे 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 करते हैं शाहरुख खान। This is such a good day. रोमियो, Thank you. सर, क्या है? क्या कर रहा है तू? ये? अरे इतना सारा माल पड़ा है, स्टॉकिस्ट के यहाँ से आया है, उसको बेचेगा कौन? अरे धंधा करने के टाइम पे तेरे को रोमांस की सूझ रही है? सर, टुडे इज माय लीव और मैं मेरे फ्री टाइम में कुछ भी कर सकता हूँ ना। अरे क्या कुछ भी कर सकता है? तो वो अपने लाइन में कुछ भी कर सकता है ऐसा नहीं चलता है, धंधा करना पड़ेगा। अबे धंधा है तो छोकरी है, नहीं तो चली जाएगी। अरे सर, शी इज नॉट लाइक दैट। अरे शी इज नॉट व्हाट लाइक दैट वैट बोल रहा है तू। तू चल भाई चल, धंधा कर, ये सब छोड़। नहीं सर। अरे अरे एक मिनट, ऐसा बारिश में ज्यादा खड़ा मत रहे, न्यूमोनिया तेरी छाती में घुस जाएगा, समझ रहा है क्या? सर ऐसे नहीं होता। क्या नहीं होता? राहुल। सर आई हैव टू गो। अरे धंधा है भाई। सर बट दिस इज माय फ्री टाइम। अरे टारगेट फॉर फ्री टाइम। राहुल। दिव्या, बट क्या करूं, सर आ गए बीच में। राहुल, दिस इज टू मच नाउ। इट्स ऑल ओवर बिटवीन अस। अब आगे से मुझे फोन और मैसेज करने की कोशिश मत कर। बाय। दिव्या, दिव्या, सर, दिव्या। अजीत भाई कैसे हो? अरे राहुल भाई आओ बैठो। बोलो क्या बोलो आपके लिए, चाय कॉफी या ठंडा? नहीं नहीं, बस आज तो मैं सेल्स लूंगा। अजीत भाई, आपने मुझे याद किया था, बोलिए क्या हुआ? राहुल भाई बात ऐसी है कि वो थोड़ा डिस्काउंट का हो जाता तो मजा आ जाता। अजीत भाई और उनका डिस्काउंट। चलिए दिया डिस्काउंट। हाँ अजीत भाई सुनिएगा, हाँ ध्यान से, आपके लिए एक शानदार स्कीम लेकर आया हूं। दिल्ली वाली स्कीम आपको गुजरात में दूंगा। यस, पर अजीत भाई इसके बारे में किसी को बताना मत, हाँ, क्योंकि ये स्कीम मैं अपने रिस्क पर दे रहा हूँ। वो क्या है ना, अब ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपके मेडिकल स्टोर के लिए है, किसी और के लिए नहीं। किसी और को पता चलेगा ना तो मेरी जॉब का राहुल भाई आप बेफिक्र रहिए। हाँ डाल दीजिए, डाल दीजिए। डाल दी। हाँ पर अजीत भाई अब ये बताइए कि मुझे फ़ोन आया था पेशेंट का कि आप दवाई देने से मना कर रहे हो। ये जो डॉक्टर्स हैं ना हमारी दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, और आप मना क्यों कर रहे हो? पर राहुल भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने स्टॉकिस्ट को बोलिए कि माल भेजे। जब माल ही नहीं होगा तो मैं पेशेंट को क्या दूंगा? क्या बात कर रहे हो अजीत भाई? दिखाइए इन्वेंट्री। देखिए मॉकटेल। क्या बात कर रहे हो अजीत भाई? एक मिनट, आत्माराम भाई लगाइए आत्माराम भाई को। एक मिनट। हाँ हेलो हेलो, हाँ आत्माराम भाई केम छो?
अरे पण હું મજામાં નથી. ये देखो अजीत भाई क्या बोल रहे हैं. हाँ, अरे आपने अभी तक स्टॉक नहीं भेजा. अरे क्या कल बोलोगे परसों. अरे नहीं अजीत भाई, हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए. हमारी बात क्या हुई थी, आप तुरंत माल भेजोगे. अरे नहीं अरे आत्माराम भाई, मेरी बात सुनिए. आपको पता है पेशेंट्स को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है. अरे हमारी कंपनी का कितना खराब लगता है. हाँ, ओ गजल की टिकट चाहिए आपको. अरे आत्माराम भाई, गजल की 2 टिकट आपकी ऑफिस में पहुंच जाएगी. पर प्लीज पहले स्क्रीनशॉट भेजिए कि आपने माल रवाना कर दिया है. ठीक है. हाँ ठीक है, थैंक यू. थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज. हाँ चलो अजीत भाई, आपका काम हो गया. मैं जाता हूँ, काम पहुँचता होगा. हाँ अरे कहाँ चल दिए. ये आत्माराम भाई के लिए 2 गजल की टिकट. अरे जरा मेरे बारे में भी तो सोचिए. थोड़ा भाई, थोड़ा सोच लीजिए. चलिए ठीक है. लालची हो हाँ बड़े. डोंट यू वरी, आपके घर पे लेदर का नया डेनिम जैकेट पहुंच जाएगा. पक्का. ठीक है पक्का. ठीक है, तो आप माल भिजवाइए. ठीक है, चलिए भाई. ओके. ये भाई, ये सब क्या है? तेरे को क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मेरे अंडर है ना भाई 4 MR काम करते हैं. ये स्कीम है ना, तू रेवड़ी की तरह मुफ्त में बांटता फिरता है ना, वो मुझे समझ में आता है. अक्कल है कि नहीं भाई तेरे को? अरे ये दिल्ली की स्कीम है, तू गुजरात में क्या बांट रहा है? अब सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने ये स्कीम सिर्फ एक मेडिकल स्टोर वाले के लिए दी है. पर ये जो आप स्कीम की बात कर रहे हैं ना, वो 1 महीने बाद एज सच हमारी कंपनी यूज करने वाली है गुजरात में. इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एडवांस में दे देता हूँ स्कीम, कंपनी को फायदा हो जाएगा सर, इसलिए. अब ये कंपनी की पॉलिसी है ना, मुझे मत समझा. मैं बहुत सालों से हूँ. हाँ, पॉलिसी समझा रहा है. और ये है ना इलीगल है, अभी नहीं कर सकता तू ये. अगर NSM को पता चला ना तो नौकरी जाएगी भाई तेरी. और किसी को बोले नहीं, मैं तो फोन कर सकता हूँ, बाकी नंबर NSM का है मेरे पास. नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज. हाँ, डोंट डू दैट. ये कभी करना नहीं, और करे तो मुझे पता नहीं चलना चाहिए. बात कर. ये भाई राघव, अभी तेरा क्या है बोल. ये भाई माल तो बेचना पड़ेगा कि नहीं? ये तुम्हारे बाप का माल है क्या? अरे प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी, नौकरी करनी है कि नहीं? अभी अब तेरा बाप मेरा दोस्तार है, उसका फायदा उपाड़ रहा है तू. हाँ अच्छा, अबे कुछ करता हूं, चल रख फोन. हाँ वे जय श्री कृष्ण. भाई राहुल, ये राघव का टारगेट तुझे कंप्लीट करना पड़ेगा. व्हाट सर? यस सर, यहाँ पे मेरा टारगेट ही खुद. सर दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क. सर मेरे एरिया में इतने डॉक्टर्स, इतने वेंडर्स हैं ही नहीं, तो मैं राघव का कैसे करूंगा टारगेट? ए भाई, तू किसके सामने खड़ा है पता है ना? क्या बोला मैंने? टारगेट तो ये पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो वो तेरी रेवड़ी की बात है ना, मैं NSM को कर सकता हूँ कभी भी. नहीं सर प्लीज, NSM को मत बताइए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ए भाई, ये ट्राई नहीं, यू हैव टू ट्राई इट सक्सेसफुली. भाई करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना. और खड़ा क्या है, काम कर भाई. ऐसा कॉफी नहीं पीता रहने का. जा तू जा. अरे जाने भाई तू जा. सॉरी सर. सर वो NSM को मत बताना प्लीज. भाई कॉफी पीने देना, जाने तू. थैंक यू सर. सॉरी सर. ये थैंक यू सॉरी नॉनसेंस. राहुल ने चैलेंज तो ले ली, ऑर्डर पूरा करने का निश्चय भी कर लिया, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था. 5 दिन बाद बिजली गिरी.
ए भाई, ये राहुल मेरी बात सुन, 2 दिन का सिक लीव लिया था तूने, 4 दिन हो गए हैं? क्या एंट्रिक पॉजिटिव? क्या बात कर रहा है भाई? मतलब टाइफॉइड, ये टाइफॉइड वाली इतने सारे प्रोडक्ट जमा करके रखे हैं, हाँ, उसको बेचेगा कौन? मेरा बाप? ए भाई, तू तेरा टाइफॉइड जो है ना वो तेरी गर्लफ्रेंड को दे दे, हाँ, और तू काम पर आ भाई, प्रोडक्ट बेच, इतने सारा टारगेट कंप्लीट करेगा कौन? अरे भाई जल्दी आ तू यार, लोगों को काम नहीं करना है बस। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये राहुल के चक्कर में मेरी नौकरी जाएगी, लेकिन मैं देसाई हूं, नौकरी नहीं जाने दूंगा, कुछ करता हूं। हेलो, हाँ एनएसएम सर, सर मैं नीरज देसाई। जी जी जी, मुझे पता था आप मुझे जानते हैं। हाँ जी, गुजरात से। कैसे हैं आप? सर मैं क्या कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है? नहीं मतलब ये अपना स्टार परफॉर्मर, अरे सर वो तो कहता है कि उसको कुछ टाइफॉइड वाइफॉइड है। अभी आप तो जानते हैं ना, 200 रुपये में आप चाहो वो रिपोर्ट मिल जाता है। हाँ, अरे नहीं सर, मैंने कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया। अरे नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए। अरे सर वो क्या था कि उसने मुझे कहा कि अरे देसाई साहब, मार्केट में अपनी बहुत चलती है, आप बोलो ना कितनी प्रोडक्ट बेचनी है। तो मैंने बोला ठीक है। अरे नहीं बाकी, अरे मैं तो जानता हूँ ना सर, ऐसा मैं क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब स्टॉकिस्ट के यहाँ से सारा माल वापस आ गया? हे भगवान, ये नहीं नहीं सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। ये लोग काम ही नहीं करते, घूमते नहीं अपने एरिया में, कैसे? नहीं सर, मैंने उसको कुछ नहीं कहा है। हाँ सर, यू नो आई एम वेरी लॉयल टू केपलर ऑलवेज। यस सर। नहीं, ये मेरा थोड़ा सा सजेशन है कि अब चाहे तो उसको वो नोटिस वोटिस को दे सकते हैं। हाँ आजकल के जवान लोग कुछ काम ही नहीं कर। एनीवे, सॉरी टू डिस्टर्ब। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। बची गयो। राहुल बेटा, अब कैसी तबीयत है तेरी? ठीक है बेटा, कुछ दिनों से देख रहा हूं बहुत खोए खोए रहते हो। अब तो तुम्हारी तबीयत भी अच्छी हो गई है, जॉब पर भी नहीं जाते, कितने दिन हो गए, घर में रहते हो, कहीं आना नहीं जाना नहीं, किसी का फोन भी नहीं लेते। क्या बात है बेटा? अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना। हे पापा, आप चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हूँ, पता नहीं क्यों बट कमरे से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। ऐसा करता है कि बस बैठा रहूं, बस अंधेरा कमरा। और पापा आप चिंता मत करो, मैंने ऑफिस में लीव ले ली है तो चलेगा। पापा, हाँ आपने दवाई ली? दवाई बेटा, हाँ मैंने ले ली दवाई। झूठ बोल रहे हो आप। कहाँ है?
कहाँ है दवाइयाँ? राहुल बेटा, पिछले 2 महीने से तू दवाई लाया ही नहीं है। मैं समझता हूँ बेटा, मैं समझता हूँ खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ये मेरी कैंसर की बीमारी, ये महंगी दवाइयाँ, और बेटा तुझे पिछले 2 साल से इंसेंटिव भी नहीं मिला, और रानी की शादी के लिए जो कर्जा लिया था उसे चुकाने में ही तेरी आधी सैलरी चली जाती है, और बाकी जो बचता है उसमें से घर के सारे खर्चे, लाइट बिल, गैस बिल, और शिवा की पढ़ाई का खर्च भी। हाँ बेटा, शिवा से याद आया मुझे, शिवा का फोन आया था। क्या बोल रहा था वो? वो कह रहा था उसके स्कूल वाले कुछ पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। तो तू गया कि नहीं? नहीं बेटा, मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे समझा दिया कि हम लोग सब साथ में जाएंगे। बेटा वो स्कूल वाले 6,000 रुपये मांग रहे थे पिकनिक के लिए, कहाँ से देता बेटा मैं? हाँ, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। और बेटा तू भी तो इतने कर्जे में डूबा हुआ है, इतने दिनों से तूने अपने लिए एक शर्ट भी नहीं ली है बेटा। पापा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, शिवा के लिए नए कपड़े, उसको पिकनिक जाना है ना, मैं इंतजाम करता हूँ 6,000 रुपये का। रानी को भी पैसे। पापा, आपकी मॉकटेल मैं वही करता हूँ। हाँ, देव का फोन। क्या है? कितनी बार बोला देव, फोन मत किया कर, नहीं करनी है बात। हाँ, क्या करेगा? हाँ, मदद करेगा मेरी? सुनना चाहता है ना? सुन, पैसे नहीं है मेरे पास, तकलीफ में हूं मैं। नहीं, बस ऑलरेडी तूने मेरी और मेरे परिवार वालों की बहुत मदद कर दी है। बस अरे हाँ, जानता हूं कि दिव्या की शादी फिक्स हो गई है। क्या करूं मैं? उसके बाप को पैसे वाला दामाद चाहिए, नौकरी। फोन रख, कहा ना फोन रख। फोन करता है। पापा, मैं क्या करूं? शांत हो जा बेटा, शिवा की फीस भरनी है। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बुरे दिन एक दिन तो जाएंगे ना। तू यहाँ बैठ बेटा, आराम से बैठ। नहीं पापा, आपकी मॉकटेल लानी है। सब हो जाएगा बेटा, मेरी बात सुन। तू ये सब छोड़, अभी तू आराम कर बेटा। अगर और कोई बात हो ना तो हम सुबह बात करेंगे, अभी कुछ मत सोच तू। ठीक है, तो सो जा बेटा, कल सुबह बात करेंगे। ठीक है पापा, अब चिंता मत करो। तू सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। शिवा की फीस लानी है, पापा की दवाइयाँ पहले लानी है, शिवा की फीस बाद में रानी। गॉड। हेलो हेलो सर। हेलो सर, sorry to call you at this time of the moment. My name is hello sir, my name is Rahul Majmudar. Sir, I wanted to talk to you about something. भाई अब फोन कर ही दिया है तो बता, क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? Sir, I actually wanted to talk to you about
समथिंग विच इज हैपनिंग इन माई कंपनी। हाँ सर, आप तो जानते थे ना कि पहले हमारे जो रीजनल मैनेजर थे मिस्टर मुरली, ये यस सर, ही वॉज अ वेरी गुड मैन सर। और मिस्टर अविनाश, ही वॉज अ एरिया मैनेजर, ही वॉज जस्ट लाइक माई फैमिली, ही ट्रीटेड मी वेरी वेल सर। बट सर मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो नए एरिया मैनेजर आया है मिस्टर देसाई सर, ही इज नॉट अ गुड मैन सर, ही इज वेरी रूड। यस सर, एक्चुअली आई एम इन अ बिग ट्रबल। आई डोंट भाई मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन 400 लोगों को लेकर बैठा हूँ, अब किस पर ध्यान रखूं? मैं अहमदाबाद से आकर तेरा प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं कर सकता ना। एक काम कर, एबीएम को बोल मुझे मेल करे, एंड आई विल टेक एक्शन। ओके सर, या सॉरी। शिवा की फीस लानी है, पापा की। अविनाश सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर? अरे आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। इंसेंटिव मिला क्या? नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं मिला है सर। सर सॉरी टू कॉल यू अभी, बट सर आई एम नॉट गुड सर, आई एम नॉट डूइंग वेल। मुझे ना अच्छे राहुल क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अच्छे विचार नहीं आ रहे। हेलो सर, आई एम नॉट हियर टू कंप्लेन, बट प्लीज लिसन टू मी सर। मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए हैं। हाँ सर द थिंग इज, ये जो नए एरिया मैनेजर है ना मिस्टर नीरज देसाई, आपके जाने के बाद सर ही इज नॉट ट्रीटिंग मी वेल। हाँ सर एक बात बताऊं, किसी और का टारगेट भी मुझे दे रहे सर, मैं खुद का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। और थोड़ी धीरज रखना बेटा, और ईमेल कर। हाँ चल बाय। सर आई नो, बट उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। मैं लेटर ड्राफ्ट कब करूंगा, मेल कब करूंगा? राहुल, वीकेंड पे मैं आता हूँ, मैं सारी चीजें सॉर्ट कर लूंगा। डोंट वरी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फाइन सर, आई एम सो सॉरी, अभी कॉल किया मैंने। इट्स फाइन। नहीं सर, इट्स फाइन, आप सो जाइए। गुड नाइट। मेल ड्राफ्ट करूं पहले? नहीं, दवाइयाँ लेके आता हूँ, मैं देव को फोन करता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए। नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मॉकटेल लाऊं पहले? नहीं, मॉकटेल नहीं, अब शिवा की दवाइयाँ लानी है पहले। नहीं, शिवा की तो फीस भर रही है। राहुल बेटा, शिवा की स्कूल से फोन था, उसे पिकनिक के लिए 6,000 रुपए देने हैं। भैया, कार्तिक की नौकरी चली गई है और घर में पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ मदद हो जाती तो। अरे दोस्त से पैसा लेने में क्या शर्माता है? राहुल, मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। बेटा मेरी दवाइयाँ लानी है, मेरा कैंसर तो बढ़ता ही जा रहा है। भैया, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। गाड़ी कब लेगा? बेटा मेरी दवाई कर सकते, तुझे ही करना होगा। इस अनकही कहानी की आवाज कौन बनेगा? इस अनकही कहानी की आवाज कौन सुनेगा?
क्या हमारे ऐसे ही खत्म होते रहेंगे? और ये सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? मैं, आप, उसका सोशल स्टेटस, घर की जिम्मेदारियां, उसके सीनियर्स, कौन जिम्मेदार है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एमाज आर द पिलर्स ऑफ आवर कंपनी. दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फ्रेटर्निटी, आवर इंडस्ट्री. और फिर एवर सुबह शाम, दिन हो रात हो, चाहे धूप हो बारिश हो, हमारी प्रोडक्ट बेचने के लिए दौड़ता है. और उसे भी बहुत कुछ संभालना रहता है. उसके सीनियर्स, मेडिकल स्टोर, स्टॉकिस्ट, डॉक्टर्स. और उस दौरान अगर उसे छोटी सी गलती हो जाती है तो क्या हम नजरअंदाज नहीं कर सकते? और ये सब के बीच में वो खुद चाहता क्या है? थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, थोड़ी सी दोस्ती चाहता है बस. इसलिए मैं कहता हूं, हेल्प एमआर टू हेल्प अस, हेल्प एमआर टू ग्रो अवर कंपनी. ये नाटक का अंत ऐसा होना चाहिए? नहीं ना. मैं बताता हूं, एमआर की जिंदगी का और हमारे नाटक का अंत ऐसा होना चाहिए. अरे राहुल बेटा, तेरी इस कीमोथेरेपी ने तो कमाल कर दिया. अब तो मुझे लग रहा है मैं अगले 15 साल और जीऊंगा बेटा. अरे पापा, बोला था ना आपको कि नई दवाइयाँ काम करेगी. हाँ बिल्कुल सही कहा. Congratulations! हाँ, आप मामा बनने वाले हो. अरे पापा, नेपियर लेके आओ. क्या बात है राहुल, तूने तो मेरे से भी बड़ी गाड़ी ले ली. बोला था ना. हाँ? मेरे पापा हमारी शादी के लिए मान गए. वाह, डबल खुशी. हमारा ये नाटक देखने के बाद अब कुछ मैसेज तो घर लेके जाएंगे ना. वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? टेक होम मैसेज. देयर इज अ टेक होम मैसेज. बताता हूँ आपको. So here are some take home message from the play. Be a good listener. Communicate effectively with emotional connection. Approach situation with empathy and a broad perspective. Avoid being judgmental. Remember, your team members have families. Support them with patience. Demonstrate first, then delegate. Understand that failures are stepping stone to the new learnings. Always have a contingency plan to reduce failure rates. Lead from the front and stand by your team in any situation. Encourage innovation and recognize efforts. Avoid blame games and support your team through the tough times.